Hello students, in this video we are going to read the second story of your English supplementary book. The name of this story is The Friendly Mongoose. So mongoose is an animal. I hope you all have seen a mongoose. Mongoose को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेवला, right? So let's read the story. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. तो एक बार एक फार्मर था, किसान, और वो अपने वाइफ और अपने एक छोटे से बेटे के साथ एक विलेज में, एक गांव में रहता था. They loved him very much. फार्मर और उसकी वाइफ दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, जैसे कि हर मम्मी पापा अपने बच्चों से करते हैं. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. So one day what happened? The farmer said to his wife, farmer ने अपने वाइफ से कहा that we must have a pet. हमारे पास एक pet animal होना चाहिए. Pet means पालतू जानवर. When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा धीरे धीरे बड़ा होगा, the word son son means बेटा. जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसको एक companion means साथी की, दोस्त की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion. तो अभी से एक पेट रखे तो जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा, ये पेट उसका दोस्त बन सकता है. Companion means दोस्त. His wife liked the idea. Okay? उसकी वाइफ को भी ये आइडिया पसंद आया. So one evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. So एक दिन शाम को, one evening, what happened? The farmer brought with him a tiny mongoose. Farmer अपने साथ लेके आया. Brought means लेके आया. क्या लेके आया? The farmer brought with him a tiny mongoose. एक छोटा सा नेवला लेके आया. Tiny, tiny means छोटा सा. Okay? बेबी मंगूस को लेके आया. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown. तो उसकी वाइफ बोलती है, अरे ये तो एक बेबी मंगूस है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बड़ा भी हो जाएगा. He will be a friend to our son. और ये मंगूस हमारे बेबी का दोस्त बन सकता है. Then what happened? Both the baby and the mongoose grew. तो मंगूस भी उनके घर रहने लगा. मंगूस भी धीरे धीरे बड़ा होता गया, बेबी भी धीरे धीरे बड़ा होता गया. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीनों के बाद मंगूस अपने पूरे साइज़ में बड़ा हो गया. मतलब मंगूस अब कम्प्लीटली बड़ा हो चुका था. अब ये बेबी मंगूस नहीं था, फुल्ली ग्रोन मंगूस बन चुका था. तो मंगूस तो 5-6 महीने में बड़े हो जाते. A lovely animal with 2 shining black eyes. So this animal had a lovely pair of shining black eyes and a bushy tail. Bushy means बहुत ही गहरा, जिसमें जैसे किसी के सर पे बहुत सारे बाल होते तो हम बोलते you have a bushy hair. So like that, the mongoose had a bushy tail and a pair of shining black eyes. उसकी जो आँखें थे चमकीले काले रंग के थे और पूँछ बहुत गहरा था. बहुत सुंदर एनिमल बना वो. The farmer's son was still a baby in the cradle. लेकिन फार्मर का बेटा तो 5-6 महीनों में पूरा बड़ा नहीं हो सकता. So he was still a baby. वो अभी भी बेबी था. And he was still in the cradle. अभी भी cradle में ही था. Cradle means वो झूला जिसमें बेबी सोते हैं, right? That is a cradle. Sleeping and crying alternatively. So the baby was still in cradle. अभी भी cradle में ही था. And he was sleeping and eating and crying alternatively. उसका और कोई काम नहीं था, बस उठता था, रोता था, फिर सो जाता था. Alternatively means एक के बाद एक. अभी रोता था तो फिर सो जाता था, फिर रोता था, उठ के फिर सो जाता था. So बेबी का तो बस यही काम था, because it was still a baby. One day, the farmer's wife wanted to go to the market. Okay? So one day what happened? The farmer's wife wanted to go to the market. वो फार्मर की वाइफ जो थी वो मार्केट जाना चाहती थी.
She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उसने बेबी को खाना खिलाया. She fed. The word fed is the second form of the word feed, F-E-E-D, feed, which means to give somebody food. Okay, feed word का मतलब होता है किसी को खाना खिलाना. Fed उसका second form है. तो उसने बेबी को खाना खिलाया and rocked him to sleep. Rock means झूले को झुलाना. उस झूले को झुलाते हुए उसको सुला दी. In his little cradle. Now picking up the basket, she said to her husband. उसने बास्केट उठाया और अपने हस्बैंड को बोलती है, I am off to the bazaar. मैं बाजार जा रही हूँ. The baby is sleeping. बेबी अभी भी सो रहा है. Keep an eye on him. उस पर नज़र रखना. So keep an eye मतलब नज़र रखना. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. Frankly मतलब अगर सच बोलूँ तो मैं बेबी को मंगूस के साथ अकेले छोड़ना नहीं चाहती हूँ. तो आप थोड़ा इस पर नज़र रखना. तो किसने किससे कहा? द फार्मर्स वाइफ said it to the farmer to keep an eye on the baby because she was going to the market. Then what happened? You need not be afraid, said the farmer. तो फार्मर बोलता है, अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं. अफ्रेड मीन्स डरना. यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. ये मंगूस जो है बहुत ही फ्रेंडली एनिमल होता है. फ्रेंडली एनिमल उसे कहते हैं जो सबके साथ घुल मिल जाता हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो. So mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know. Okay? तो वो उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बेबी है और वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं. सो यू डोंट नीड टू बी वरीड. तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं. सो द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. सो उसकी वाइफ चली गई. देन फार्मर भी कुछ समय बैठा रहा. देन ही हैड नथिंग टू डू इन द हाउस. उसको घर पे करने के लिए कुछ भी नहीं था. वो कितना समय खाली बैठता. सो ही डिसाइडेड टू गो आउट. वो बाहर जाने का डिसाइड कर लिया. एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स. उसने सोचा अपने खेत को थोड़ा सा देख लेता हूँ. विच वॉज नॉट फार अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, वो चल के जा सकता था. उसने सोचा थोड़ा जाके देख लेता हूँ घर पे क्या करूँ. ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. तो गया तो था फील्ड को देखने, बट वाइल कमिंग बैक ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स. रैन इन टू मीन्स एक्सीडेंटली मिल जाना किसी से. ओके, तो अपने दोस्तों से मिल गया. एंड ही डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और बहुत बहुत समय तक वो वापस नहीं आया. दोस्तों के साथ बातें करता रहा और वो भूल गया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. तो फार्मर तो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया. एंड मीन वाइल द फार्मर्स वाइफ फिनिश शॉपिंग. फार्मर की वाइफ का शॉपिंग ख़त्म हो गया. एंड सी स्टार्टेड कमिंग बैक होम. एंड वाइल सी वॉज कमिंग बैक होम सी वॉज होल्डिंग अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. और पूरे ग्रॉसरी आइटम से भर के बास्केट फुल करके ला रही थी. ग्रॉसरी मीन्स ऑल दोज डेली नीड थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, राइट. खाने पीने का सामान या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, दोज आर ग्रॉसरीज. सो सी वॉज होल्डिंग अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. ओके, सो जैसे ही वो घर के तरफ आती है, वो देखती है मंगूस दरवाजे के पास बैठा हुआ है. ऐसा लग रहा हो जैसे उसके लिए वेट कर रहा हो. ऑन सीइंग हर सी रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. तो जैसे ही उसने मंगूस को देखा, अब मंगूस भी उसको देखा. मंगूस भागते हुए गया उसके तरफ, उस लेडी के तरफ, जैसे कि उसको वेलकम करने के लिए भाग रहा हो. एंड इट वॉज अ कस्टमरी. कस्टमरी मीन्स समथिंग दैट हैपन्स यूजुअली एज अ कस्टम. तो जैसे हमेशा मंगूस करता है, जब कोई बाहर से आता है वो एक्साइटेड हो जाता है. जैसे डॉगी लोग भी ऐसे ही करते हैं. यू मस्ट हैव सीन when their masters come back to house, they become very excited and they start to run and jump, right? So the mongoose also went running to her to welcome her. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Okay, farmer की wife एक नज़र मंगूस को देखती है. She took
one look at the mongoose and she started screaming. Scream means चिल्लाना. Okay, and she screamed. उसने चिल्लाया. क्या बोल के चिल्लाया? Blood. She cried. उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे खून. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. Okay, mongoose का face और paw. Paw means पंजा. उसका चेहरा और पंजा पूरा ब्लड से लथपथ था. स्मियर्ड मीन्स पूरा कवर हो जाना. उसका फेस और पंजा पूरी तरह से ब्लड से स्मियर्ड था, लथपथ था. यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. ओके, तो वाइफ क्या बोलती है, तुम बदमाश एनिमल. विकेड मीन्स बदमाश एनिमल, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला. सी स्क्रीम्ड हैस्ट्रिकली. हैस्ट्रिकली मीन्स बिना सोचे समझे वो चिल्लाने लगी. सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज. रेज मीन्स गुस्सा. ओके, सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, वो गुस्से से अंधी हो गई. एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल. और इतना गुस्सा आया उसको कि वो पूरा जो हैवी बास्केट पकड़ी हुई थी ग्रॉसरी का, उसको उठाई और मंगूस के ऊपर जो ब्लड से लथपथ था जोर से पटक दी. ओके, एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड, और सीधा अंदर गई बच्चे को देखने. देन व्हाट हैपेंड, द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. बेबी तो आराम से सो रहा है. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोर एंड ब्लीडिंग. लेकिन फ्लोर पे एक काला सांप पड़ा हुआ है और सांप जो है उसका पेट चिरा हुआ है और उसमें से खून निकल रहा है. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. इन अ फ्लैश मीन्स इन अ सेकेंड. तुरंत ही वो समझ गई कि एक्चुअली क्या हुआ था. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. और जैसे ही उसको समझ में आया कि क्या हुआ था, शी स्टार्टेड रनिंग आउट टू सी वेयर इज द मंगूस. क्या समझ में आया उसका? दैट द स्नेक हैड कम to attack the baby and the mongoose had killed the snake, and the blood that was on the paws and face of the mongoose was not of the baby but of this snake. So this is what the lady understood, and as soon as she understood this, she ran out to look for the mongoose. जैसे उसको समझ में आया कि अरे मंगूस ने मेरे बेबी को नहीं मारा, वो तो बचाने के लिए सांप को मार रहा था, तो वो तुरंत बाहर गई मंगूस को देखने. ओह, You saved my child. You killed the snake. What have I done? अरे फिर वो जाके रोने लगी, अरे तुमने तो सांप को मारा है, तुमने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया. She cried touching the mongoose. Okay, मंगूस के ऊपर बास्केट पटक दी थी ना, मंगूस पड़ा हुआ है, सो वो मंगूस को छूते हुए रोने लगी. Who lay dead and still unaware of her sobbing. और बेचारा मंगूस मरा हुआ पड़ा था. And she was unaware of her sobbing. और मंगूस को क्या पता था कि वो अभी रो रही थी. Sobbing means रोना. ओके, वो रोए जा रही थी, लेकिन मंगूस को क्या पता, मंगूस तो मर चुका था. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. अब ये फार्मर की वाइफ जिसने बड़े हैस्टिली मीन्स जल्दबाजी में काम किया था, एंड रैशली मीन्स बहुत ही रूडली, बिना सोचे समझे काम किया था, वो बहुत लंबे समय तक उस डेड मंगूस को देखती रही. देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग. फिर उसने सुना कि बेबी रो रहा है. विपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम. अपने आंसू पोंछते हुए वो अंदर गई उसको खाना खिलाने. सो दिस इज़ द होल स्टोरी विच वॉज टेकन फ्रॉम Panchatantra. Panchatantra is a series of stories, very beautiful stories which has always a moral. Okay, so which moral does this story have? So what is the moral of this story? That we should never act hastily. Okay, जल्दबाजी में हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. We must understand the situation completely, देन ओनली टेक एनी डिसीजन. अगर फार्मर की वाइफ एक बार अंदर आके देख लेती कि उसके बेबी का क्या हाल है, तो वो शायद मंगूस को ना मारती. राइट, बिकॉज सी एक्टेड हैस्टिली, क्योंकि उसने जल्दबाजी में काम किया और बिना सोचे समझे ही उसने ब्लड को देख के ही डिसाइड कर लिया कि ये ब्लड जो है मेरे बेबी का है. सो सी टुक अ रॉन्ग डिसीजन. सो वी शुड नेवर एक्ट हैस्टिली. वी शुड ऑलवेज
go through the complete situation, then only take any decision, right? So I hope you enjoyed the story. So just a minute. Here is the question answers. Let me explain these questions to you. I want all of you to write these answers in your English notebook and submit it to me. So what is the first question? Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? तो फार्मर एक बेबी मंगूस को घर में क्यों लेके आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट द फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी मंगूस विद द बेबी अलॉन विद द मंगूस? तो फार्मर की वाइफ बेबी को मंगूस के साथ अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स? जब उसकी वाइफ डरती थी कि नहीं मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, सो फार्मर ने क्या कहा इस बारे में, क्या कमेंट किया? देन नंबर 4, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूस विथ हर बास्केट? फार्मर की वाइफ ने मंगूस को अपने बास्केट के साथ क्यों स्ट्राइक किया? स्ट्राइक मीन्स मारना, क्यों मारा उसको अपने बास्केट के साथ? नंबर 5, डिड सी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन? रिपेंट मीन्स पछताना, क्या उसको अपने इस जल्दबाजी में लिए हुए एक्शन के ऊपर पछतावा हुआ? हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस? वो अपने पछतावे को किस तरह से दिखाई? हमें कैसे पता चलता है कि वो पछता रही थी अपने डिसीजन को लेकर? ओके, यू हैव टू राइट दिस. नाउ डू यू हैव अ पेट, अ कैट और अ डॉग? इफ़ नॉट, वुड यू लाइक वन? अच्छा, क्या आपके पास पेट है? अगर नहीं है तो क्या आप एक पेट रखना पसंद करोगे? सो हाउ वुड यू लुक आफ्टर इट? किस तरह से आप उसकी देखभाल करोगे और कौन सी पेट रखोगे? आर यू फॉर और अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स इन केज एज पेट्स? अच्छा, एनिमल्स को पेट की तरह रखते हैं, लेकिन बर्ड्स को भी केज के अंदर पेट बना के रखते हैं. क्या आपको बर्ड्स को पेट बना के केज के अंदर रखना पसंद है? हाँ या ना? अपना रीज़न एक पैराग्राफ में लिख के बताना. ओके, so I want all of you to write this 5 question answers and also write in a paragraph, would you like to have a pet? If yes, then which pet and how will you take care of it? And is it right to put a bird inside a cage? So these things you have to write within a paragraph. And if you have any doubt, you can ask me in my WhatsApp number. Thank you.